Okay, so good morning everyone. So we will start today's session. Today we will continue our lecture that is based on analytical method validation. Okay, that is a unit that is your paper 4, unit 4, analytical method validation. And that particular topic we are uh, currently we are working on the second topic. First, we are already completed the strategy of the analysis of method development. Now we are studying on a analytical method validation. So up till now, what we are already covered, that is how exactly method develop. After developing a method, how exactly we are validate the method. Out of that, the few points we are already studied on what are the method validation. So what are the topics we are already studied in method validation? So there are few series or number of tests we have performed before the method validation. These are specificity, linearity, range, accuracy, precision, detection limit, quantitation limit, robustness, and system suitability testing. Out of which we are already completed the what is specificity, that is nothing but with specific respect to your sample. Then we are seeing the linearity, which is that is a number of multiple concentration in a linear way we are prepared and we find out the graph of the linearity. Next, which is the topic which we are studying, that is the range. So we are on this particular slide, that is a diagram of your range and linearity, which I combinedly put it into one slide. Okay. So first we will read what is exactly in a range, what exactly we are studying a range. Then we will see this particular diagram. Okay. I try to make slideshow. If it is okay, then I will keep it in a slideshow. Otherwise, once again, we will come to the next same position. So I hope I'm audible, right? Just write yes in chat box. So because I have not asked you as I started the lecture. Okay. So we will continue. The slide is not moving. Okay. So I just make like this. Okay. So range. What is exactly range? Okay. From the word you can maybe guess what is exactly range in your method validation. So it is a interval between the upper and lower level of a analyte. Okay, it is the interval between the upper and lower level of the analyte. The data obtained during the linearity and accuracy studies will be used to assess the range of the method. So documentation, that is a slope of regression, correlation of coefficient and y intercept. ठीक है. So अभी जो कुछ भी हम लोग ने पढ़ा है, let's see the diagram. ठीक है. So this is the, I just increase the slide so you can easily find out exactly what is the range. ठीक है. One second. Okay. In this diagram there are two graphs. So out of the second graph which is with respect to your range. So what is linear range? See, यहाँ पे तुम लोग को lines दिखे. There are three lines in this particular graph. Here it is your concentration and this is your response in amount nanogram per liter. ठीक है. This is your absorbance और जो कुछ भी तुम लोग का response है and that is your log amount, that is a nanogram per minute. It is your concentration. ठीक है. So that is a line which is in a black straight line. Okay, and there are two line, that is a dotted line. So जो दो dotted lines है, these are the range of that particular or limit for your particular analysis, and the single straight line which is your actual value. So if you see there are two lines where it is listed 1.05 rc and 0.95 rc, and जो single बीच में black color की line है, that is your plain rc. Okay, that is your one. सो यूनिट वन इज योर एक्चुअल रीडिंग. ठीक है, मतलब जो कुछ भी तुम लोग एनालिसिस कर रहे हो उस एनालिसिस का एक्चुअली जो रीडिंग आना चाहिए वो वन होना चाहिए. ठीक है, एज पर योर डॉक्यूमेंटेशन और एज पर जो कुछ भी तुम लोग ने एनालिसिस की है उसके हिसाब से वेन एवर यू आर परफॉर्म दिस पर्टिकुलर ऐसे, तो उसका जो कुछ भी तुम लोग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, लेकिन उसका इमेजिन करो कि ये डिवीजन है. ठीक है, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एब्जॉर्बेंस, तो उसका जो वैल्यू है वो एक्चुअली वन होना चाहिए.
सो उसके बाद दे हैव स्टार्टेड द नंबर ऑफ सैंपल्स, एक दो, इमेजिन करो कि यहाँ पे उन्होंने 7-8 सैंपल परफॉर्म किया एनालिसिस, एंड ये जो डॉटेड लाइन है ना, मतलब जो ये पॉइंट्स है, ठीक है। सो एक्चुअली तुम लोग के सारे पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है कि ये ब्लैक कलर का जो सेंटर का लाइन है उसके ऊपर होना चाहिए एज पर यूर मेथड डेवलपमेंट, मतलब जो कुछ भी तुम लोग ने मेथड डेवलप किया है, एंड आफ्टर डेवलपिंग मेथड जो तुम लोग ने बोला है ना एज या फिर आप लोगों ने कंक्लूड किया है कि व्हेन वी आर परफॉर्म दिस पर्टिकुलर मेथड, एंड उसके बाद जो भी एनालिसिस करने के बाद हम लोग का जो भी रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट ये है, दैट इज योर स्ट्रेट लाइन 1 यूनिट, ठीक है। लेकिन व्हेन यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग द एनालिसिस, एवरी टाइम तुम लोग का रिजल्ट 1 मे नॉट बी कमिंग और मे बी कम, ठीक है, इट्स डिपेंड। तो अगर रिजल्ट 1 नहीं आता है, वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो एग्जैक्टली कितना आगे पीछे अलाउड है या फिर कितना आगे पीछे रहेगा तो भी तुम लोग उस क्राइटेरिया के लिए एक्सेप्ट करोगे। तो दे आर गिविंग सम रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस के लिए, जैसे कि यहाँ पे अगर रेंज देखा जाए, सो हियर 1 इज योर यूनिट इज योर रीडिंग, सो 0.0 sorry 0.95 and 1.05, that means plus or minus 0.05 is your रेंज, लीनियर रेंज, मतलब 1.05 से लेकर 9.05 के बीच में जितने भी तुम लोग के रीडिंग्स आते हैं व्हाटएवर, देन योर सैंपल इज पास। सपोज 1.06 तुम्हारा रीडिंग आता है, सो इट इज नॉट फिट इन योर रेंज। सो अगर तुम लोग एनालिसिस कर रहे हो, जैसे विटामिन सी का ले रहे हो, रीडिंग ले रहे हो, एब्जॉर्बेंस चेक कर रहे हो, ठीक है, एंड उसके बाद जब तुम लोग एब्जॉर्बेंस लेने के बाद जो तुम लोग फाइनल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इमेजिन करो कि एक्सपेक्टेड है 80% तुम लोग का आना चाहिए, एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है +and -2। मतलब क्या +and -2 मतलब क्या, 80 + 2 80 - 2, 80 + 2 मत 82, 80 - 2 मतलब 78। तो सपोज तुम लोग का रीडिंग आता है, मतलब जो भी तुम लोग का आफ्टर कैलकुलेशन आता है 79% ऑफ विटामिन सी प्रेजेंट इन योर सैंपल। सो एज पर दिस रेंज, उसका रेंज हम लोग ने क्या बोला है, और रिजल्ट +2 -2, तो उसके हिसाब से रिजल्ट कितना है अपना 80%, तो 80% + 2 होता है 82, -2 होता है 78। सो व्हाट इज योर रेंज, 82 सॉरी 78 to 82 इज योर रेंज। तो ये रेंज में जितने भी रीडिंग्स आएंगे उतना तुम्हारा सैंपल पास हो जाएगा। मतलब क्या है कि तुम्हारा रीडिंग इसी रेंज में आना चाहिए। सपोज योर रीडिंग इज आउट ऑफ द रेंज, then definitely you again go to your meta development to find out ki what exactly problem, how we can make minor little bit changes to make your result within that particular range। जैसे कि थोड़ा सा जब तुम लोग एक्सट्रैक्टिंग कर रहे हो, तो एक्सट्रैक्शन के लिए अगर हम लोग थोड़ा सा एसिडिक पीएच बढ़ाते हैं तो वैल्यू ज्यादा आगे पीछे नहीं होता है, एसिडिक मीडियम में वो ज्यादा स्टेबल रहता है। और फिर अल्कलाइन मीडिया बनाना है या फिर उसके अंदर कुछ सॉल्ट डालना है एडिशनली टू स्टेबलाइज देयर जो कुछ भी विटामिन सी, मतलब इमेजिन करो एक्सट्रैक्ट होते वक्त बहुत सारा विटामिन सी है जो लाइट एक्सपोजर के हिसाब से, मतलब ये कब पता चलेगा, जब तुम लोग का सैंपल रेंज में नहीं बैठ रहा है। देन वी आर अगेन यू आर गोइंग फॉर मेटा डेवलपमेंट, की तभी जब किया था तब तो आया था, अभी क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, तभी जब किया था तब लाइट चली गई थी, या फिर तभी हम लोग ने डार्क रूम में किया था। अभी जब एनालिसिस एक्चुअली हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तब हम लोग का R&D सेंटर नहीं है, अभी हम लोग लैब में परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स है, एंड विटामिन सी इज लाइट सेंसिटिव। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर रीजन मे बी हम लोग का रीडिंग कम आ रहा है। तो जब भी तुम लोग एनालिसिस कर रहे हो तो तुम लोग ने फिर से चेंज की एग्जैक्टली कम लाइट में करने के लिए देखे। जब तुम लोग ने लाइट एक पर्टिकुलर लिमिट तक लाइट रखा, देन जितने भी बार तुम लोग ने सैंपल किए वो विद इन द रेंज में आ रहे हैं, मतलब आइदर 81, आइदर 80, एग्जैक्टली 80 और 79 वगैरह, ठीक है। ये तुम लोग ने चेंजेस किए। सो दिस इज अ पर्टिकुलर रेंज की द सैम्पल, क्योंकि एग्जैक्टली सेम अमाउंट में रिजल्ट आना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मैनुअल एरर होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर होता है, बहुत सारी चीजें, तो एक्यूरेट एक पर्टिकुलर नंबर में रिजल्ट डेफिनेटली नहीं आता है। सो डेफिनेटली व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग द एनालिसिस, इट रिक्वायर्ड सम रेंज की, इस रेंज के अगर आउट ऑफ रेंज आता है देन इट इज हार्मफुल, या फिर उसके आगे हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन इतने रेंज में मतलब ऑलमोस्ट हमारे सैंपल का एनालिसिस सिमिलर कंडीशन में है, सो वी कैन एक्सेप्ट। तो लेकिन रेंज कितना होना चाहिए, डायरेक्टली 60 to 40% तो नहीं होना चाहिए। तो एक डिपेंड अपॉन कि उनका सैंपल में एग्जैक्टली कितना अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है, एक्सट्रैक्शन इफिशिएंसी क्या है, ये सारी चीजों को कंसीडर करके दे आर डिसाइडेड अ रेंज फॉर दैट पर्टिकुलर एनालिसिस, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन योर इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट, एनालिसिस टू एनालिसिस एंड पर्सन टू पर्सन, या फिर जो कुछ भी तुम लोग के डिसीजन है उसके ऊपर, मैनेजर का डिसीजन है उसके ऊपर डिसीजन होता है क्या रेंज रखना है। सो रेंज इज नथिंग बट द अपर एंड लोअर लिमिट के बीच का जो विद इन द इंटरवल के जो भी रीडिंग्स होते हैं, दैट रीडिंग इज कॉल्ड एज अ रेंज। So I hope you are
sorry, understood this particular point, ठीक है, what is exactly range. So we will move for the next slide. See, if you want, I can just read definition once again to uh, and matlab correlate. So it is the interval between the upper and lower limit of the analyte. That is data obtained during the linearity and accuracy study. It will be issued to access the range of the method. So documentation में क्या लगता है? Slope of regression. That is nothing but this is your slope. ठीक है, कि कितने पॉइंट्स है, अगर ये दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट जो आउट ऑफ रेंज जा रहा है, so that is your slope वगैरह, दे आर वो y इंटरसेप्ट करके वगैरह निकालते, दीज आर समथिंग नथिंग बट योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें तुम लोग को सारे वैल्यू प्लॉट करके स्लोप निकालना है. स्लोप निकालने के बाद एक स्लोप का एक पर्टिकुलर इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन के हिसाब से यू आर फाइंड आउट द y इंटरसेप्ट. ये सारा तुम लोग बायोस्टैटिस्टिक्स स्टडीज में सीखोगे, अभी तुम लोग के नेक्स्ट लेक्चर हो गए तभी, देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर वे कि एग्जैक्टली ये टर्म्स क्या होते हैं. ओके, सो वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्राइटेरिया. ठीक है, सो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा? एक्यूरेसी, स्पेसिफिसिटी, linearity and range. Anybody is having till up till now any doubt? Can I move for the next point? Just write yes in chatters box if you are don't have any doubt. Okay, Naina say yes, so we will continue for your next slide. Sorry. So next term is your accuracy and precision. ठीक है, so what is exactly accuracy and what is exactly precision? Diagram हम लोग बाद में देखते हैं. First we will read the definition of exactly accuracy, then you can more understand about the diagrams and what is the difference between the accuracy and precision, or are they are same, or what is exactly difference, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे. So first we will discuss with the first point, that is your accuracy. So accuracy is the nearness of the measure value to the true or accepted value. I read once again. Accuracy is the nearness of measured value to the true and accepted value. It provides an indication of any systemic error or bias in the method. For unbiased method, theoretical plot of measure value versus true value can be described as a mathematical function. Okay. So what is exactly accuracy? Nearness of your measure value and true value. What is the measure value and what is the accepted value? Can anybody explain me if you know the what is exactly measure value or accepted value? Just raise your hand so I can ask the question then. मतलब I can say unmute. Anybody is no? Nobody is raising hand. ठीक है. Okay. So accepted value क्या होता है वो तो सबको पता रहेगा. Hope so. Can Supriya, तुम्हें पता है what is accepted value? Just let me know. You can unmute yourself. सब लोग yes yes लिख रहे हैं. हाँ, तो अगर yes है तो फिर at least वरद, just let me know what is exactly accepted value. Just unmute yourself. Varad, are you there? Just unmute yourself and say what is exactly accepted value. No? Tanuja? Okay. So exactly what is accepted value? ठीक है, जब तुम लोग मेथड डेवलप कर रहे थे तो डेवलपमेंट के टाइम पे तुम लोग को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिला होगा, जिस तुमने बोला कि ये अगर मेरा मतलब वेन एवर आई डेवलप द मेथड, डेवलपमेंट जब मेथड डेवलप होता है सिंगल टाइम परफॉर्म नहीं करते, राइट, 3-4 बार परफॉर्म करने के बाद डिसाइड करते. जैसे कि हम लोग ने क्रोमेटोग्राफी किया था, सो आइडियली व्हेन देयर आर 5 बैंड इन फाइटो, इसके अंदर फोटो पिगमेंट्स के अंदर 5 फोटो पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन whenever we are performing the analysis maximally we can record only 4 बैंड. ठीक है, 5 बहुत ओकेजनली या फिर किसी एक पर्टिकुलर बंदे को मिलता है, ठीक है, पूरे बैच में से वो भी एक बार ही मिलता है, रिपीटेडली नहीं मिलता है. सो मेजरली क्या होता है कि जितने भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इमेजिन करो कि 4 बैंड आइडियली आते हैं.
सो व्हाट इज माय एक्सेप्टेड वैल्यू कि व्हेनेवर आई एम परफॉर्मिंग, ठीक है, 4 बैंड मिले, ये मोबाइल फेज यूज किया था, ये मोबाइल फेज से 3 मिले थे, वो मोबाइल फेज से 2 मिले थे, दिस इज द पर्टिकुलर मोबाइल फेज, मेथनॉल इज टू एसीटोन इज टू जो कुछ भी है 0.1 ml ऑफ वाटर, ये मोबाइल फेज जब यूज किया था हम लोग ने, दैट टाइम वी आर गेटिंग ऑल द 4 बैंड, ठीक है, 3 टाइम रिपीट किया, 4 बैंड मिले। सो व्हाट इज योर एक्सेप्टेड वैल्यू? एक्सेप्टेड वैल्यू ये रहेगा कि जब भी ये मेथड से, ये मोबाइल फेज से फाइटो मतलब तुम लोग के फोटो पिगमेंट्स तुम लोग एक्सट्रैक्ट करोगे तो तुम लोग को एग्जैक्टली 4 बैंड मिलते हैं, 4 बैंड आर मिलेंगे, बिकॉज मेथड डेवलप के बाद हम लोग ने वो प्रूव किया। व्हाट इज मेजर वैल्यू? जब ये तुम लोग ने मेथड डेवलप करके उसको स्टैंप लगा दिया है कि दिस इज अ मेथड एंड इससे ये रिजल्ट आता है, ठीक है। अब ये डेवलप करने के बाद इमेजिन करो कोई न्यू स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम लोग ने इमेजिन करो कि टीवाई बायोटेक के बच्चे हैं जिनको हम लोग को सिर्फ परफॉर्म करके दिखाना है कि फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो मेथड विच वी आर ऑलरेडी डेवलप इन योर प्रैक्टिकल, तो हम लोग ने उनको वो मेथड बनाया एंड उनके वॉल्यूम जो मेजर वैल्यू मतलब उनके जो भी बैंड्स आएंगे दैट इज योर मेजर वैल्यू। सो इमेजिन करो उनके सिर्फ 3 ही बैंड आते हैं, मतलब एक्सेप्टेड वैल्यू एंड मेजर वैल्यू में कुछ तो डिफरेंस है। एक्सेप्टेड वैल्यू क्या था कि 4 बैंड आने चाहिए, उन लोग को कितने मिले? 3। सेम वे तो विटामिन सी का एनालिसिस कर रहे, जो भी मेथड हम लोग ने डेवलप किया है अकॉर्डिंग टू योर मेथड डेवलपमेंट, एप्पल या फिर लेमन जूस में से 60% विटामिन सी निकलता है, या फिर 60 मिलीग्राम विटामिन सी इज प्रेजेंट इन 100 मिलीग्राम ऑफ 100 ml of सॉरी हाँ 100 ml ऑफ लेमन जूस के अंदर 60 ग्राम सॉरी 60 मिलीग्राम जो भी हुए, ठीक है, तुम लोग को विटामिन सी मिलता है, 60 मिलीग्राम विटामिन सी 100 ml एप्पल लेमन जूस में मिलता है। सो एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है? दैट इज योर 60 मिलीग्राम मिलना चाहिए पर 100 ml ऑफ लेमन जूस, ठीक है। वे जब मेथड डेवलप होने के बाद किसी भी लेमन जूस का सैंपल तुम लोग मेजर करते हो तो तुम लोग का रिजल्ट क्या आता है? इमेजिन करो इफ यू आर गेटिंग एग्जैक्टली 60 मिलीग्राम देन योर मेजर वैल्यू एंड एक्सेप्टेड वैल्यू इज सेम, ठीक है। सपोज 58 मिलीग्राम आता है, सो योर मेजर वैल्यू एंड एक्सेप्टेड वैल्यू इज डिफरेंट। सो व्हाट इज एक्यूरेसी कि हाउ मच यू आर नियर अबाउट योर एक्सेप्टेड रेंज, ठीक है। अगर 60 है 59.8 वगैरह है, मतलब यू आर ऑलमोस्ट नियर अबाउट योर एक्सेप्टेड वैल्यू, मतलब यू आर मेथड इज वेरी वेरी एक्यूरेट, बिकॉज जितने भी टाइम तुम लोग एनालिसिस कर रहे हो जो तुम लोग का एक्सेप्टेड वैल्यू एग्जैक्टली तुम लोग को वही रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन ऐसे बहुत कम होता है, ठीक है। हमेशा ही एग्जैक्टली जो रिजल्ट है उतना रिजल्ट हम लोग को नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ द वॉट एवर ब्ला 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 वेरिएशन जो तुम लोग को सबको पता है। सो मेजर वैल्यू एंड एक्सेप्टेड वैल्यू के अंदर जो नियरनेस है या फिर जो भी डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट योर एक्यूरेसी कि हाउ मच एक्यूरेटली यू आर आइडेंटिफाई और हाउ मच एक्यूरेटली मैच योर एक्सेप्टेड वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। So it provide an indication of any systematic error or bias in the method, ठीक है। जैसे कि तुम लोग ने बहुत बार इमेजिन करो 10 टाइम्स यू आर परफॉर्मिंग योर एनालिसिस एंड 10 सैंपल है, उसमें से 9 टाइम पे तुम लोग को एग्जैक्टली 60 मिलीग्राम या फिर 59.2 59.4 59.6 मिला, ठीक है। और एक कहीं तो रीडिंग है जिसके अंदर तुम लोग को डायरेक्टली 57 मिला। सो इट मे बी कि वो परफॉर्मेंस एरर हो सकता है या फिर इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ एरर हो सकता है या फिर एग्जैक्टली कम है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए वो जरूरी है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि एक सैंपल में इतना कम क्यों आया। सो एक्यूरेसी इज फाइंड आउट द दिस नियरनेस एंड इट्स इंडिकेट द सिस्टमैटिक और बायस एरर इन योर मेथड, क्योंकि अगर सारे चीजों सारे मतलब इफ आई एम रिपीटिंग सेम सैंपल 10 टाइम्स, उसमें से 10 टाइम एक्सपेक्टेड है कि तुम्हारा रीडिंग सेम आना चाहिए, that is your accuracy, ठीक है। So let's see the first of all we will discuss the precision also, then we will see the diagram so you can easily differentiate between the both the terms. Okay, so this is your documentation कि exactly क्या रखता है। For each sample reported the theoretical value, assay value and percent recovery, ठीक है। theoretical value means जो तुम लोग का रिजल्ट है, जैसे कि मैंने बोला 60 mg is your assay value, theoretical value is 58.4 is your theoretical value। percentage recovery, what is percentage recovery? 58 divided by 60 multiplied by 100, मतलब exactly क्या expected result तुम लोग को कितना परसेंट ऐसे मिला, that is your percentage recovery। calculate the mean standard deviation and percentage recovery for all the samples, record result in a data sheet।
ठीक है। अभी ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, whenever you are performing the accuracy, हमेशा भी, ठीक है, you are performing a minimum 3 और maximum 6 duplicates। मतलब ये लेमन जूस में से तुम लोग अगर विटामिन सी एक्सेप्ट कर रहे हो और वो मेथड तुम लोग वैलिडेशन के लिए परफॉर्म करे, तो एज पर यूर द मेथड डेवलप के जो रीडिंग्स है या फिर उसका जो भी तुम लोग का कंक्लूजन है, एज पर दिस कंक्लूजन 60 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी इज प्रेजेंट इन यूर लेमन जूस। ये तुम लोग का ये क्या बोलते हैं ऐसे वैल्यू है, ठीक है। सो जब तुम लोग मेथड डेवलप करते हो, सेम सैंपल के तुम लोग मिनिमम 6 इंजेक्शन लगाओ, सॉरी मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 6 इंजेक्शन लगाते हो। एज पर FDA दे आर आस्किंग टू डू द रिपीटेडली सेम इंजेक्शन 5 टाइम्स, ठीक है। तो सेम सैंपल सेम इंजेक्शन सेम वायल में भी फिल होगा, इंजेक्शन भी सेम रहेगा, बट वी आर परफॉर्मिंग द 6 इंजेक्शन, ठीक है। अभी मेथड सेम है, ठीक है, कॉलम सेम है, बाकी सारे कंडीशन जो एक्सप्लेन हो सारे कंडीशन सेम है, तो एक्सपेक्टेड क्या रहेगा, रिजल्ट भी सेम आना चाहिए। यू आर नॉट यूजिंग 10 डिफरेंट सैंपल, यू आर यूजिंग सेम सैंपल रिपीटेडली। सो आइडियली जब तुम लोग एक ही सैंपल में से, मतलब एक ही कप में विटामिन जूस निकाला हुआ है, उसी कप में से इंजेक्शन करे हो, तो आइडियली वैल्यू सेम आना चाहिए, बट नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली सेम वैल्यू आता है। याद है जब हम लोग एरिया अंडर कर्व करते हो, स्टैंडर्ड भी रिपीटेडली रन करते हो, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। दैट इज योर समथिंग इंस्ट्रूमेंटल कोई बैकग्राउंड में होता है, उसके वजह से होता है। सो जब भी तुम लोग सेम सैंपल रिपीटेडली एनालिसिस करते हो, तो तुम लोग का एग्जैक्टली कितना सेम रिजल्ट आता है, कितना वेरिएशन आता है, ये मेजर एक्यूरेसी से होता है। तो मीन में तुम लोग क्या करोगे, 6 इंजेक्शन का मीन निकालोगे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे। हाउ यू विल फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वैल्यू, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मीन वैल्यू कितना है, जैसे कि सपोज रीडिंग तुम लोग का 6 है, तो रीडिंग आता है 5.60 MB, तो 58.1, 59.42, 59.68, 59 पॉइंट, ऐसे तुम लोग के जो भी रीडिंग्स आते हैं, ठीक है, या फिर 60.03, 60.14, ऐसे तुम लोग के टोटल 6 रीडिंग्स आएंगे। देन 6 रीडिंग का मीन निकालोगे, ईच मीन एंड ईच रीडिंग दोनों में डिफरेंस कितना है, जैसे कि मीन आता है सपोज 59.8 एंड तुम लोग का फर्स्ट रीडिंग है 58.6, तो दोनों में कितना डिफरेंस है, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका रिग्रेसिव स्टैंडर्ड डेविएशन करते हो तुम लोग एंड परसेंटेज रिकवरी निकालते हो। सो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, हर एक डॉक्यूमेंटेशन का एक पर्टिकुलर लिमिट होता है, मीन इतना ये नहीं होना चाहिए, मीन एंड तुम्हारे पर्टिकुलर वैल्यूएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होना चाहिए, उसका भी लिमिट्स दिया हुआ होता है, एंड उसके हिसाब से पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके देन यू आर फाइंड आउट कि तुम्हारी मेथड सच में एक्यूरेटली रिजल्ट देती है या नहीं। इफ ये सारे क्राइटेरिया पास होते हैं, देन यस योर मेथड इज पास फॉर दैट पर्टिकुलर एक्यूरेसी का टेस्ट। सपोज नहीं होता है, देन अगेन गो फॉर मेथड डेवलपमेंट की एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, हम लोग को क्या क्या चेंजेस करने पड़े। सो दीज आर द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है, बट दीज आर नॉट अ फिक्स, ठीक है, ईच एंड हर एक इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, हर एक मेथड के हिसाब से दे आर वेरी एक्चुअली। जैसे कि अगर तुम लोग यूएस के फार्माकोपिया में देखोगे, तो उनके एचपीएलसी पे कोई मेथड से क्राइटेरिया अलग होते हैं, रियली सॉरी, सॉरी, इंडियन फार्माकोपिया में अलग होते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया में अलग, इस डिपेंड अपॉन मेथड टू मेथड कि एग्जैक्टली कौन सा मेथड तुम लोग यूज कर रहे हो, उसके लिए तुम लोग का क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके हिसाब से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होते। सो दिस स्लाइड इज नॉट एक्चुअली मीनिंगफुल कि एग्जैक्टली इतना ही होता है, ऐसे नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन योर मेथड। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज योर प्रिसीजन. So precision of a method is a degree of agreement among the individual test result when procedure is applied repeatedly and multiple sample. मैं फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान देना, बिकॉज प्रिसीजन एक्यूरेसी में बहुत सारा सिमिलरिटीज है एंड थोड़ा बहुत डिफरेंट भी है, तो एग्जैक्टली सिमिलरिटी क्या है एंड एग्जैक्टली डिफरेंट क्या है, ये तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है. So precision of a method is the degree of, only 10 minutes left, okay, we will cover the precision only. So precision of the method is the degree of agreement among individual test result when procedure is applied repeatedly in multiple sampling. फिर से पढ़ती हूँ, the degree of agreement among the individual test result when the procedure is applied repeatedly to multiple
सैंपलिंग, ठीक है। प्रिसीजन इज मेजर बाय इंजेक्टिंग सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड और एनालाइज सीरीज ऑफ सैंपल फ्रॉम मल्टीपल सैंपलिंग फ्रॉम द होमोजेनियस स्लॉट। मतलब एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का मेथड एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि एक्यूरेसी में तुम लोग ने क्या किया, विटामिन सी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया था कि 100 ml के विटामिन सी जो जूस तुम लोग ने विटामिन सी का लेमन जूस जो एक्सट्रैक्ट किया है उसके अंदर हम लोग के एज पर आवर डेवलप मेथड, ठीक है, 60 मिलीग्राम विटामिन सी 100 ml पर 100 ml जूस में प्रेजेंट होता है। ये हम लोग ने मेथड डेवलपमेंट करके के बाद एश्योरेंस दिया है, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी के लिए हम लोग ने क्या किया, उसके मिनिमम 6 इंजेक्शंस लगाए। 6 इंजेक्शंस लगाने के बाद यू आर चेकिंग कि कितना रिजल्ट आता है। अभी इमेजिन करो कि जब तुम लोग ने मेथड डेवलप की थी तो तब तुम लोग का रिजल्ट आया था 60, ठीक है। अभी जब तुम लोग ये देख रहे हो एक्यूरेसी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए मेथड के लिए एंड यू आर रिपीटेडली एनालाइजिंग द 6 इंजेक्शंस, ठीक है। लेकिन 6 बार जब भी तुम लोग ने इंजेक्शंस किए तो तुम लोग का रिजल्ट आया 59.12, ठीक है। फर्स्ट इंजेक्शन को आया 59.12, सेकेंड इंजेक्शन किया 59.11, थर्ड इंजेक्शन किया 58.09, फिफ्थ किया 59.12, ठीक है। सिक्स किया 59.12। मतलब क्या है कि जब भी तुम लोग रिपीटेडली कर रहे हो तुम लोग का एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आला है, बट यूर रिजल्ट इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज पर यूर एक्सेप्टेड वैल्यू, ठीक है। जो एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है उससे रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, लेकिन जितने भी बार परफॉर्म कर लो रिजल्ट सेम ही आ रहा है। दैट इज प्रिसीजन, मतलब एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ रहा है। मतलब कि जो कुछ भी तुम लोग मेथड करे वो करेक्ट है, लेकिन वो एक्चुअल रीडिंग से अभी कुछ तो थोड़ा सा वेरिएशन है। अभी ये वेरिएशन क्यों हो सकता है, सिंपल है। इमेजिन करो कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द डेवलप द मेथड, जस्ट एग्जांपल, दैट टाइम यू आर यूजिंग पल्किर एनिमल का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एंड वी आर एक्चुअली यू आर परफॉर्मिंग योर एनालिसिस, यू आर परफॉर्मिंग द अपना पास जो है, ठीक है, लैब इंडिया का यूवी, दैट इज यूवी 300+। या फिर जब परफॉर्म किया था ने, अभी तुम लोग के पास सैंपल इसके बीच में 3 महीने जा चुके हैं एंड तुम लोग का यूवी कंटिन्यूसली यूज में है, तो लैम्प की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, ठीक है। सो जो उसके रेडिएशन है, मे बी जो कलर वो लोग मतलब जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है, सी जब इट्स अ लाइट एंड उसका लैम्बडा मैक्स है, इट्स अ पर्टिकुलर क्या, इट्स अ डिपेंड अपॉन देयर कलर ऑफ एब्जॉर्बेंस। सो तब जब तुम लोग ने विटामिन सी निकला तब जो लाइट एब्जॉर्ब हुआ था, अभी लाइट के सोर्स में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है बिकॉज बहुत टाइम से लैम्बडा मैक्स यूज होने के बाद बल्ब की इंटेंसिटी कम हुई है। या फिर जो पल्किर एमले का एल्मर के इंस्ट्रूमेंट में जो बल्ब है एंड अभी का जो बल्ब है उसमें काफी सारा डिफरेंस है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई और बल्ब यूज किए, यहाँ पे जो यूवी का बल्ब है ये अलग बल्ब है, तो लिटिल बिट भी अगर लाइट का वेरिएशन हो सकता है तो तुम्हारे रिजल्ट में वेरिएशन हो सकता है, राइट। लेकिन इसका मतलब क्या है कि तुम लोग ने जो मेथड डेवलप किया है तो उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये जो कुछ भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है, इट्स मे बी द इंस्ट्रूमेंटल वेरिएशन हो सकता है, या फिर उस टाइम पे हम लोग ने जो एक्सट्रैक्शन के लिए सॉल्वेंट यूज किया था वो HPLC ग्रेड था, अभी जो यूज किया है वो एनालिटिकल ग्रेड यूज किया है बिकॉज हम लोग के पास HPLC ग्रेड का भी अवेलेबल नहीं है 100, मुझे अभी वो दूसरा सॉल्वेंट यूज करना है। या फिर जिस कंपनी से हम लोग ने मंगाया था सॉल्वेंट वो कंपनी बंद हो चुकी है, मर्क अभी बंद हो चुकी है, सो हम लोग ने दूसरे किसी कंपनी से अभी मिथेनॉल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया। तो ये थोड़े मोड़े चेंजेस की वजह से क्या आ रहा है, रिजल्ट एग्जैक्टली सेम, मतलब जो कुछ भी हम लोग मेथड करे वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, लेकिन एक्सेप्टेंस वेरिएंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। मतलब एग्जैक्टली 59.12 रिपीटेडली आ रहा है, मतलब क्या, जो कुछ भी मेथड हम लोग यूज करें वो एग्जैक्टली एक्यूरेट है, बट इट इज लिटिल बिट वेरिएट फॉर्म दे। तो उसके लिए कुछ तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि 60 अगर रीडिंग आ रहा है तो 59 से लेकर अगर 61 तक, दैट इज योर रेंज, अगर वो रेंज में बैठ रहा है दैट मींस योर सैंपल इज पास। तो उसके लिए रेंज रखना बहुत जरूरी है। तो दैट इज योर प्रिसीजन वाला क्राइटेरिया कि एग्जैक्टली क्या है, मतलब व्हाट इज सो एग्जैक्टली प्रिसीजन। नाउ लेट्स सी द डायग्राम, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम देयर आर 4 पिक्चर्स, ठीक है। सो ये जो सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट, दिस इज योर एक्चुअली रीडिंग, एक्सपेक्टेड रीडिंग जो है, तो ये सेंटर पॉइंट है वो होना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी ये जो कुछ भी तुम लोग के रीडिंग्स आ रहे हैं ये क्या है, ये इमेजिन करो दिस इज योर सर्कल, दैट इज योर
रेंज, मतलब इससे बाहर अगर तुम लोग जाते हो तो यू आर आउट ऑफ रेंज, द सैंपल इज फेक, ठीक है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। अभी ये क्या है, तुम लोग का एक्सेप्टेड वैल्यू, एंड तुम लोग ने जो 6 इंजेक्शन किए वो ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड वैल्यू से एग्जैक्टली पास है। तो दिस इज योर एक्यूरेसी, कि यू आर मोर एक्यूरेट इन योर रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि जो तुम लोग का एक्सेप्टेड वैल्यू है और जो तुम लोग का रिजल्ट मिला है वो एग्जैक्टली और ऑलमोस्ट तुम्हारे रीडिंग के सिमिलर में आ रहा है, ठीक है। बायस मीन्स क्या है, कुछ तो तुम लोग का रीडिंग एक्यूरेसी है लेकिन रीडिंग कुछ कुछ और ही दिशा में जा रहा है, मतलब जो भी 6 इंजेक्शन किए सेम, मतलब दीज आर द सेम विटामिन सी के सैंपल सेम वायल में से हम लोग ने लिए, फिर भी इतना वेरिएशन आ रहा है, तो डेफिनेटली देयर आर समथिंग हैपनिंग ड्यूरिंग योर एक्सट्रैक्शन और व्हाट तुम लोग एनालिसिस कर रहे हो, कुछ तो घपला हो रहा है, दैट्स व्हाई हर एक रीडिंग में इतना सारा वेरिएशन आ रहा है, दैट इज योर बायसनेस, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, दैट इज योर क्या बोलते हैं कि नॉट अ एक्यूरेट रिजल्ट, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, सो यू नीड टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। दिस इज योर प्रिसीजननेस, मतलब क्या है कि एक्सेप्टेड रीडिंग ये आना चाहिए लेकिन तुम लोग का रीडिंग ये आना चाहिए, लेकिन वेन एवर यू आर अप्लाइंग द इंजेक्शन तुम लोग को एग्जैक्टली यही रीडिंग मिल रहा है, ये रीडिंग नहीं मिल रहा है। सो व्हाट इज द डिसीजन व्हेन यू आर परफॉर्मिंग प्रिसीजन, कि तुम लोग को सच में लिखना है कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर मेथड is your analysis giving 60 milligram, instead of that मेथड में डेवलपमेंट, मेथड डेवलप के टाइम पे वहां पे चेंज करो कि आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एनालिसिस नॉट 60 मिलीग्राम नहीं मिल रहा है, वी आर गेटिंग 59 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी फ्रॉम 100 ml ऑफ सैंपल। ये चेंजेस किस वजह से किया, बिकॉज वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग द रिपीटेडली इंजेक्शन तुम लोग को यही रिजल्ट मिल रहा है। तो ये रिजल्ट हम लोग ने डेवलपमेंट के टाइम पे बताया था, लेकिन जब हम लोग मेथड एक्यूरेसी मतलब वैलिडेट कर रहे तो ये रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है रिपीटेडली, मतलब एक्चुअली रिजल्ट ये है। मे बी इस टाइम पे कुछ तो एरर हो सकता है या फिर इस टाइम पे कुछ तो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन दिस इज द एक्चुअल यूर रीडिंग, सो दैट इज यूर प्रिसीजननेस। So do you understand the basic terms, that is precision and accuracy? Anybody is having doubt up till now? Okay, so can we move further? एटलीस्ट लाइट समथिंग इन चैट बॉक्स, फिर मुझे ऐसे लगेगा मैं अकेली बातें कर रही हूँ, तुम लोग कोई है नहीं, सब लोग सो गए। ओके, ओके, 3 चैट्स आ गए मतलब यस यस होगा, चलो वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। कितना टाइम बचा है, ओनली 1 minute, एटलीस्ट आई रीड द स्लाइड, आई विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग इन लेटर, व्हाट इज एग्जैक्टली नेक्स्ट स्लाइड। oh it's a limit of detection, so better I will take it that particular point in next slide only, because उसको समझाने में थोड़ा टाइम जाएगा। what is exactly limit of detection, that is LOQ and LOD both are similar terms, so limit of detection and limit of quantification I will take in your next lecture, so better I will stop here. Anybody is having any doubt up till now you can ask, otherwise after 1 minute I will stop the session, मतलब एक ही मिनट बचा है। So instead of just reading, I will stop the lecture here. We will continue the next slide in the next lecture. So I think so, do you have any doubt? So we will stop here, okay? And the next point I will continue in the afternoon session. Sure. Thank you so much. Bye.